بزرگوں اور بھائیوں، آج ابھی نماز میں یاسین شریف پڑھی گئی۔ جس کو انگریزی میں ترجمہ سننا ہو مولانا عبداللہ صاحب کے پاس جاؤ، وہ ترجمہ کریں گے۔ ابھی نماز میں یاسین شریف پڑھی گئی۔ اس صورت میں ایک مضمون بیان ہوا ہے۔ میں نے وہ آیت پڑھی ہے اور اسی کی مناسبت سے سورہ ذاریات کی 3 آیتیں ملائی ہیں، اس میں بھی یہی مضمون آیا۔ یہ بات تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محتور وہ شخص جس کی موت حاضر ہو گئی، اس کے پاس میں یاسین شریف پڑھنا مسنون ہے۔ حدیث میں حکم ہے کہ محتور کے پاس یاسین شریف پڑھو۔ اس میں لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب نزا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی ہوش نہیں ہے اس کو، اب بیٹھ کر یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ یہ یاسین شریف پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس سے پہلے وقت ہے، جبکہ اسے ہوش ہے۔ پڑھنے والا یاسین شریف پڑھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، ایسے وقت میں یاسین شریف پڑھنی ہے۔ جب نزا شروع ہو گیا، بالکل بے ہوش ہے، اس کو دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہے، اس وقت یاسین شریف پڑھنا ٹھیک ہے، ایک رسم ادا کر لو، مگر جو مقصد ہے وہ مقصد اس وقت حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو کلمہ پڑھانا ہے وہ بھی محتور کو کلمہ پڑھانا ہے۔ عربی کا لفظ ہے محتور۔ محتور کے معنی وہ شخص جس کی موت حاضر ہو گئی، یعنی مرنے کا وقت قریب آ گیا۔ آثار سے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس وقت کلمہ پڑھوانا ہے جب وہ ہوش میں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جب نزا شروع ہو گیا، اب اس کو کوئی ہوش بیچارے کو نہیں ہے اور قریب بیٹھ کر کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کو تو ہوش ہی نہیں، وہ پڑھتا ہی نہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھو۔ عربی میں لفظ ہے محتور، وہ شخص جس کی موت حاضر ہو گئی، یعنی جس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ وہ حدیث تو آپ حضرات نے خوب بار بار سنی ہوگی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بیمار پڑے اور یہ خیال ہوا کہ اب ان کی موت کا وقت قریب ہے، تو حضور تشریف لے گئے کلمہ پڑھوانے کے لیے۔ حضور تشریف لے گئے، کمرے میں ابو جہل تھا اور ایک دوسرا شخص تھا امیہ، اور چارپائی کے پاس ایک آدمی کی جگہ خالی تھی۔ تو جب حضور آئے تو ابو جہل اس کم وقت میں یہ سوچا کہ یہ محمد آئے ہیں اور چچا کو بھتیجے سے بہت محبت ہے اور یہ اپنے چچا کی چارپائی کے پاس بیٹھیں گے اور پاس میں بیٹھ کر کے اسلام کی دعوت پیش کریں گے، اور انہوں نے اگر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تو سارے مکہ کی کایا پلٹ جائے گی، کیونکہ ابو طالب مکہ کے بڑے آدمی تھے۔ تو اس نے کھٹ سے جب حضور داخل ہوئے تو وہ ابو جہل وہاں سے اٹھ کے چارپائی میں ابو طالب کے قریب بیٹھ گئے اور جگہ بھر دی تاکہ حضور قریب میں بیٹھ سکے۔ آدمی قریب نظر پڑتی ہے تو محبت جوش مارتی ہے، تو اس نے جا کر وہ جگہ بھر دی۔ تو وہ جو جگہ دور خالی ہوئی تھی حضور وہاں جا کر بیٹھے، اور حضور نے ان سے چچا سے کہا کہ چچا جان
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، میں اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالی کے یہاں آپ کو بخشوا لوں گا۔ تو ابو طالب خاموش ہے۔ تو ابو جہل اور امیہ نے دیکھا ہے کہ تو تیر کمان سے جا رہا ہے، خاموش رہنے کا مطلب کہ تھوڑی سی رضامندی ہے۔ اس نے دونوں نے فوراً کہا کہ ابو طالب تم اپنے ابا عبد المطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے، اپنے والد کا عبد المطلب کا مذہب چھوڑ دو گے اور اس بچے کا، لونڈے کا، لڑکے کا، اپنے بھتیجے کا مذہب قبول کر لو۔ اب دو راہیں آ گئی، ایک طرف بھتیجا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے یہاں اس کلمے کے ذریعے تمہیں بخشوا دوں گا، اور دوسری طرف یہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے باپ کے مذہب سے پھر جاؤ گے، اور یہ بھتیجا بچہ اس بچے کے مذہب کو قبول کر لو گے مرتے وقت۔ ابو طالب کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا۔ انہوں نے جو آخری بات کہی وہ یہ کہی کہ میں اپنے والد عبد المطلب کے مذہب پر ہوں، اور حضور سے یہ کہا کہ بیٹے مکہ والے یہ کہیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا ہے اس لیے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ تانا دیں گے لوگ مکہ والے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا ہے، بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اگر یہ تانے کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں جو تم کلمہ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہو وہ میں پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرتا، لیکن یہ تانے کا ڈر ہے، لہذا میں اپنے والد عبد المطلب کے مذہب پر مر رہا ہوں۔ یہ مشہور واقعہ ہے حدیث میں۔ دیکھو حضور کلمہ پڑھوانے کے لیے کس وقت گئے ہیں جب وہ ہوش میں ہیں اور فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ ان کو یہ راستہ اختیار کرنا ہے یا ان کو یہ راستہ اختیار کرنا ہے، اس کی سمجھنے کی پوزیشن میں ہے، اس وقت کلمہ پڑھوانا ہے۔ محتضر کے معنی ہے موت قریب آ گئی ہے، آثار سے نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ مرے گا، اس وقت جب باہوش ہو اس وقت کلمہ پڑھوانا ہے۔ اسی طرح سے فقہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ آپ محتضر کو کلمہ پڑھوائیں قریب میں بیٹھ کر کے، اس سے کچھ نہ کریں، میت کی چارپائی کے قریب بیٹھ کر آہستہ اتنا زور سے کہ مریض سن لے، اتنا زور سے آپ بیٹھ کر کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اتنی ہی آواز سے میت کی چارپائی کے قریب میں بیٹھ کر کلمہ پڑھیں۔ پھر یہ کلمہ سن کر بیمار کلمہ پڑھے زور سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کتابوں میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اب تلقین بند کرو، جب تک مریض کوئی دنیا کی بات نہ بولے یہی اس کا آخری کلام ہے، چاہے 8 گھنٹے کے بعد وفات ہو، چاہے 2 دن کے بعد وفات ہو، چاہے 10 دن کے بعد۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظام میں بڑا لمبا وقت آدمی نظام میں رہتا ہے، تو چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے یہ کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا کی کوئی بات نہ بولے، وہاں تک یہی اس کا آخری کلام ہے، پھر آگے تلقین نہیں کرنی، بس اس نے کلمہ آخر میں پڑھ لیا۔ ہاں کوئی دنیا کی بات بولے، مجھے کھانا کھلا دو، پیاس لگی مجھے پانی پلا دو، مجھے استنجا کرا دو، یا کوئی بھی بات کہے دنیا کی، تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھوانا ہے، کیونکہ اب وہ کلمہ آخری بات نہ رہی۔ یہ جو کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے اس مسئلے سے بھی سمجھو کہ محتضر کو جس کی موت کا وقت قریب آیا ہے اس کو اس وقت کلمہ پڑھانا ہے جب اسے ہوش ہے۔ موت سے بالکل کہ یہاں کلمہ پڑھا ہے اور کھر سے روح نکل گئی، ایسا ضروری نہیں ہے، اور اس وقت تو عام طور پر ہوش ہی نہیں رہتا ہے، بیٹھے بیٹھے تم کلمہ پڑھتے رہو گے، اس کو تو ہوش ہی نہیں بیچارے کو، تو وہ کیا پڑھے گا۔ ایک قصہ یاد آیا مجھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے فقہ میں شاگرد ہیں۔
وہ बीमार है, मर्ज मौत में है, आसार से ये समझ में आ रहा है कि वफात हो जाएगी। तो करीब में बैठकर एक आदमी ने कलमा जोर से पढ़ना शुरू किया, तलकीन शुरू की। तो इब्नुल मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने भी जोर से कलमा पढ़ा ताकि सब हाजिरीन सुन ले। कल पढ़ा, इसके बाद भी वो तलकीन करता रहा, कलमा जोर से पढ़ता रहा। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक ने उसको मसला समझाया। उससे कहा, सुन, जब तेरे कलमा पढ़वाने पर मैंने कलमा पढ़ लिया तो बस ये मेरा आखिरी कलाम है। अब मैं जब तक कोई दुनिया की बात न बोलूं वहां तक यही मेरा आखिरी कलाम है। अब तू बार बार मुझसे कलमा पढ़वा कर परेशान मत कर। बस ये नसीहत की और रूह कब्ज हो गई है ना। आखिरी लम्हे तक कितना होश है। मसला समझा रहे हैं उसे, हदीस की शरह समझा रहे हैं। वो हदीस शरीफ जो है मन काना आखिरा कलाम का ये मतलब है। एक बहुत दूसरे मुहद्दिस का किस्सा याद आया। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अबू जुरआ राजी रहमतुल्लाह अलैह। इतने बड़े आदमी हैं कि इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ लिखकर उनकी खिदमत में तस्हीह के लिए पेश की है। और जिन जिन हदीसों के बारे में उन्होंने कहा ये निकाल दो, वो निकाल दिए इमाम मुस्लिम। इतने बड़े आदमी हैं अबू जुरआ राजी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी मौत का वक्त करीब आया है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन बैठे हैं, शागिर्द हजरत के। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि कलमा पढ़ाएं। इतने बड़े मुहद्दिस को ये कलमा पढ़ाना, एक को एक तरकीब समझ में आई। उसने क्या किया, वो हदीस जिसका मतन है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो जन्नत में जाएगा, वो हदीस की सनद पढ़नी शुरू की। और वो सनद इसी अबू जुरआ की सनद से सुनानी शुरू की। उसने कहा, हद्दसना हाज़ा शेख अबू जुरआ क़ाल हद्दसना फुलान क़ाल हद्दसना फुलान, ये सुन रहे हैं, क़ाल हद्दसना फुलान क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना आखिरु कलामिही। यहाँ जाकर रुक गया। तो अबू जुरआ ने लुकमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, रूह परवाह कर लिया। उन्होंने रुकमा दिया, हालांकि रुका ही ये था कि तो अजीब अजीब अहवाल हैं, इन बड़ों के भी अजीब अजीब अहवाल है। आखिर तक होश रहता है, लेकिन हर आदमी को ऐसा आखिर तक होश रहना जरूरी नहीं है। जब होश हो उस वक्त कलमा पढ़वाना है और वो उसका आखिरी कलाम है। फिर दुनिया की कोई बात बोले तो फिर कलमा पढ़ाओ, और दुनिया की कोई बात न बोले तो वही उसका आखिरी कलाम। इसी तरह से मेरे भाइयों, ये जो यासीन शरीफ पढ़ने का मसला है वो भी मोहतबर के सामने है। जिसकी मौत का वक्त करीब आया है, अब ये बाहोश है, सुन रहा है, समझ रहा है, उस वक्त पास में बैठकर सूरे यासीन शरीफ पढ़ो और उसको सुनाओ, सुनता रहे। ये तो हमारा मसला ये है कि हम अरबी नहीं जानते, इसलिए पूरा फायदा हमें यासीन शरीफ सुनने का नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर अरबी है, उसकी मादरी जुबान अरबी है, तो जब उसके पास सूरे यासीन, पूरी सूरे यासीन पढ़कर सुनाओगे तो वो सारी पूरे यासीन के मज़ामीन सुनेगा और समझेगा। तो पूरा फायदा यासीन शरीफ पढ़ने का उस वक्त होगा। यासीन शरीफ पढ़ने का फायदा क्या है? और यासीन शरीफ का पढ़ने का फायदा ये है कि ये बंदा डेड लाइन पर खड़ा है, दुनिया की जिंदगी खत्म होने वाली है और दूसरी आखिरत की जिंदगी शुरू होने वाली है। सूरे यासीन शरीफ में आखिरत की जिंदगी का तज़किरा है। तो जब ये मरने के करीब जो हो रहा है, जब वो आखिरत की जिंदगी का तज़किरा शुरू होगा तो उसका शौक बढ़ेगा आखिरत के लिए, और वो आखिरत में पूरी शौक इंतकाल हो जाएगा। तो मरना उसके लिए आसान हो जाएगा, और जन्नत और आखिरत और ये सब के मज़ामीन उसके सामने आएंगे। तो हजरत थानवी खुद्दसा सिर्रुहू का एक छोटा सा रिसाला है, उस रिसाले का नाम है शौक़े वतन। उस रिसाले में यही मौत के अहवाल हैं कि मरने के बाद क्या क्या हालात पेश आएंगे, वो सारे हालात जमा किए हैं। तो आदमी जब उसे पढ़ेगा तो हमारा असल वतन तो आखिरत है,
उस आखिरत का शौक पैदा होगा हमारे अंदर। तो हजरत ने उस रिसाले का नाम लिखा है शौक वतन। हमारा असल वतन आखिरत है। कैसे? ऐसे कि बॉम्बे से आया हुआ, कराची से आया हुआ, ढाके से आया हुआ, उससे पूछते हैं कहाँ के हो, वो कहता है मैं पाकिस्तान का हूँ, वो कहता है मैं इंडिया का हूँ, वो कहता है मैं बांग्लादेश का हूँ, पर रह रहा है 50 साल से यहाँ, लेकिन आया वहां से है। वो आया है, उसके अब्बा आए हैं, उसके दादा आए हैं, तो हम कहाँ से आए हैं? जन्नत से आए हैं। दादा और दादी जन्नत में बसा दिए गए थे। जमीन पर पैदा करने के बाद में जमीनी मखलूकात से सईदा सरेंडर करवाने के बाद दादा और दादी को दोनों को उठाकर जन्नत में बसा दिया था। तो हमारा असली वतन जन्नत है। फिर वहां से अल्लाह की हिकमत और मसलहत कि आदम अलैहिस्सलाम से लफ्जिश हो गई और वो दरख्त खा लिया जिसके खाने से मना किया गया था, और जमीन पर उतरना पड़ा और सारी औलाद जमीन पर पैदा हुई। लेकिन वतन दादा तो हमारे जन्नत से आए हैं, लिहाजा उस जन्नत का शौक भड़कना चाहिए मौत के करीब में, पूरी जिंदगी शौक होना चाहिए। तो शौक के वतन रिसाला है, उसे गाह बगा पढ़ो तो इबादत का शौक पैदा होगा, कभी जन्नत की तैयारी करो। तो ये जो वतन का शौक है वो तो जिंदगी भर जोश मारना चाहिए, और खासतौर पर मौत के करीब में तो ये शौक और बढ़ना चाहिए। सूरह यासीन शरीफ में उस वक्त के अहवाल हैं, और ये पूरी सूरत अगर आदमी समझ कर पढ़े तो जन्नत का शौक बढ़ेगा, उभरेगा, जोश मारेगा, और इस हालत में मरना आसान हो जाएगा, और वह शौक से मरेगा। इसलिए उस वक्त ये सूरत पढ़ी जाती है। तो जब हिकमत ये है तो मेरे भाइयों, जब उसे कुछ होश है, वो सूरत सुन रहा है, समझ रहा है, तभी तो मकसद हासिल हो, और नशा शुरू हो गया, और बेभान कोई भान नहीं रहा है, कोई होश नहीं रहा। अब तुम यासीन पढ़ते रहो तो फायदा तो बहरहाल होगा, तो मतलब मौत आसान होगी, तो फायदा तो होगा, लेकिन पूरा फायदा नहीं होगा। जैसे कुरान करीम की हम तिलावत करते हैं बगैर समझे, तो फायदा तो है, हर लफ्ज हर 10 नेकियां मिलती है, लेकिन कुरान करीम जो किताब हिदायत है वो फायदा तो उस वक्त होगा जब हम कुरान करीम को समझ कर पढ़ें। तो इसी तरीके पर अगर मौत के वक्त यासीन सुनाई जा रही है, वो समझ रहा है तो पूरा फायदा होगा, नहीं समझ रहा तो भी फायदा होगा, मौत आसान होगी। बहरहाल में मजमून ये समझा रहा था कि यासीन शरीफ इस खास मौके पर इसलिए पढ़ी जाती है कि उसमें मौत और मौत के बाद जो दुनिया आ रही है, अगली दुनिया आखिरत, उसके अहवाल हैं पूरी में। अब पूरी सूरत की वजाहत करने की तो मौका नहीं है, उसमें से एक मजमून मैंने मुंतखब किया है आज के बयान के लिए। वो मजमून ये है कि अल्लाह ने कायनात में हर चीज जोड़ा जोड़ा बनाई है, हर चीज जोड़ा बनाई। अकेली जात सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह का कोई जोड़ा नहीं, अकेली जात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के अलावा कायनात में हर चीज जोड़ा जोड़ा है। फरमाया सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो जात जिसने सभी चीजों को जोड़ा जोड़ा बनाया। वो किस बात से पाक है? जोड़ा होने से पाक है। अल्लाह का कोई जोड़ा नहीं, वो जोड़ा होने से पाक है, उसने हर चीज को जोड़ा जोड़ा बनाया है। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, फरमाया जो चीजें जमीन में से उगती हैं उनमें भी जोड़ा है। मिम्मा तुंबितुल अर्द, खुद इंसानों के भी जोड़े हैं। व मिन अनफुसिहिम, और जिन मखलूकात को तुम नहीं जानते, हम तो इस दुनिया की मखलूकात जानते हैं, इस दुनिया के अलावा कितनी दुनियाएं हैं और क्या क्या मखलूकात हैं, हमें कुछ पता नहीं। अल्लाह फरमाते हैं जिन मखलूकात को तुम नहीं जानते वहां भी जोड़ा जोड़ा बनाया अल्लाह। व मिम्मा ला यअलमून, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्द व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। ये इस आयत में मजमून है। अभी इस मजमून को आप समझे नहीं, क्योंकि लफ्ज जोड़ा
उसका मफहूम आपके जहन में मेल और फीमेल है, नरमादा, मुज़क्कर मुअन्नस, जोड़े का मफहूम ये है आपके जहन में। मेरे भाई इसका नाम जोड़ा नहीं है, ये भी जोड़ा है, नरमादा ये भी जोड़ा है, लेकिन यही जोड़ा नहीं है। वो दो चीजें जो दोनों मिलकर एक मकसद की तकमील करती हैं वो जोड़ा है। दो जूते दो चप्पल क्या कहते हैं? दो जूतों को दो चप्पलों को क्या कहते हैं? जोड़ा। कहाँ मेल फीमेल है? नरमादा कहाँ है? फिर जोड़ा उनको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि दो जूते दो चप्पल मिलकर एक मकसद की तकमील करते हैं। वो मकसद क्या है? सवार होकर चलना है। एक है पैदल चलना और एक है सवार होकर चलना। पैदल चलने को तो आप जानते हो, और जो जूते चप्पल पहनकर चलता है वो सवार होकर चलता है। 1 किलोमीटर आप जूते निकालकर नंगे पैर चलिए, दूसरे दिन जूते की चप्पल पहन करके 1 किलोमीटर चलिए, तो 1 किलोमीटर नंगे पैर चलोगे तो ज्यादा थकोगे, जूते चप्पल पहन कर चलोगे कम थकोगे, क्योंकि जूते चप्पल पर पहन कर गए, सवार होकर चले। सवार होने के बहुत दर्जे हैं। सबसे नीचे का दर्जा ये है जूते चप्पल पहन कर चलो। फिर उसके ऊपर है घोड़े गधे पर चलो, उसके ऊपर ऊंट पर चलो, उससे ऊपर साइकिल पर कार में चलो, उससे ऊपर हवाई जहाज में हो, और पता नहीं अभी आगे कहाँ तक आएगा, दुनिया कहाँ तक पहुंचने वाली है, मालूम किसी को कुछ नहीं। और ये मजमून हदीस में तिरमिज़ी शरीफ में पहली जिल्द के आखिर में ये हदीस है कि मा ज़ाला राकिबन मशा मुंतइलन, बराबर सवार होकर चलता रहा वो जो चप्पल पहन कर चल रहा है। तो जो चप्पल पहन कर चल रहा है वो सवार होकर चल रहा है। अब जाहिर है ये मकसद दो चप्पल होंगे तो ही तो हासिल होगा। एक पैर में चप्पल है, एक पैर नंगा है, तो मकसद कहाँ से हासिल होगा? चप्पल पहन कर जूते पहन कर चल रहा है, सवार होकर क्यों चल रहा है? देखो थकेगा, पैर कम थकेंगे, तजर्बा करो। कांटा नहीं चुभेगा, कंकर नहीं चुभेगा, पैर गंदा मैला नहीं होगा। और पैर नंगे पैर चलोगे तो कांटा भी चुभ सकता है, कंकर भी चुभ सकता है, पैर गंदा भी हो सकता है, थकेगा भी ज्यादा। और जूते चप्पल पहन कर चलेगा तो सवार होकर चलता है उस तरह से। बहरहाल दो चप्पलों को जो जोड़ा कहते हैं, जोड़ा की वजह ये है कि दो चप्पल मिलकर एक मकसद को पूरा करते हैं। कुर्ता पाजामा को क्या कहते हैं? बोलो। जोड़ा। कहाँ नरमादा है? फिर ये जोड़ा क्यों है? लिबास के 3 मकसद है। अल्लाह ने जो लिबास पहना है, हम जो लिबास पहनते हैं उसके 3 मकसद है। या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। ऐ आदम के औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया है, ऐसा लिबास जो तुम्हारे नंगापे को छुपाता है। नंगापा है नाप से लेकर घुटने के नीचे तक। एक लिबास तो ये है जिसका पहनना फर्ज है, इसके बगैर नमाज नहीं हो सकती। लिबास युवारी सौआतिकुम। दूसरा लिबास है रीशन, पर। परिंदे को, कबूतर को पकड़ो, अगर इसके सारे पर उखाड़ दो तो कितना भद्दा मालूम हो, और सारे पर हो तो कितना खूबसूरत परिंदा मालूम होता है। तो एक लिबास अल्लाह ताला ने वो लिखा पैदा किया है कि जिसको आदमी पहने तो बड़ा खूबसूरत नजर आता है। पूरे मजमे में हर आदमी कैसा खूबसूरत नजर आता है। फिर ये भी गौर कर लीजिए, कबूतर के सर पर भी पर हैं, पर टोपी पर, सर पर भी टोपी होनी चाहिए। देख लो, कबूतर पकड़कर कोई भी परिंदा पकड़ो, उसके सर पर भी पर होंगे। बस लिबास में सर पर भी लिबास चाहिए। आला दर्जा ये है कि आप टोपी और अमामा बांधे। अगर टोपी और अमामा नहीं बांध सकते तो सिर्फ टोपी पहने, सर पर भी पर हैं
اور دوسرا درجہ لباس کا وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے لیے پر کا جو مقام و مرتبہ ہے اس مرتبے کا لباس بنایا ہے۔ یہ جو لباس ہے یہ کرتے پاجامہ سے مقصد پورا ہوتا ہے۔ اگر صرف وہ کرتا پہن رکھا ہو اور پیچھے نیچے اندر پاجامہ نہ ہو، پاجامہ پاؤں کا کپڑا الگ نہ ہو، تو کہیں بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اور اڑل گیا ہے تو ساری سنیما نظر آئے گی۔ اور اگر صرف پاجامہ پہن رکھا ہے، کرتا بنیان کچھ بھی نہیں پہن رکھا ہے، تو بھی کہتا بدہ معلوم، سڑک پر ایسا کوئی جا رہا ہے تو لوگ کہیں گے وہ پاگل جا رہا ہے، پاگل سے کم خطاب نہیں دیں گے۔ ذرا کرتا اور پاجامہ، ایک تو کرتا چاہیے اور ایک پاؤں کا کپڑا الگ چاہیے، تو پھر اس سے آدمی مزین ہوتا ہے۔ اور ٹوپی جوڑے کے تابع رہتی ہے۔ جب ہم جوڑا دھوبی کے یہاں ڈالتے ہیں تو ٹوپی کا چارج نہیں کرتا ہو۔ آپ لوگ تو اپنے گھروں میں دھوتے ہیں، ہم دھوبی کے یہاں ڈالتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے، تو جوڑے میں کرتا پاجامہ گنتا ہے، ٹوپی نہیں گنتا۔ معلوم ہوا کہ یہ تابع ہے، جوڑے کے تابع ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ پرندے کے سر پر بھی پر ہیں اور اللہ نے دوسرا لباس پروں کے معنی پیدا کیا ہے۔ پھر تیسرا لباس، یہ جو دوسرا لباس ہے یہی دوسرا لباس تیسرا لباس بنے گا، لباس التقوی، پرہیزگاری کا لباس۔ یہی جو تین کپڑے ہیں، کرتا پاجامہ اور ٹوپی، یہی تین کپڑے، پتلون پہن رکھی ہے، اس کے اوپر بنیان پہن رکھا ہے یا ٹی شرٹ پہن رکھا ہے، تو دو کپڑے تو ہو گئے، سب سے کچھ نہیں ہے یا ہے کچھ۔ اور یہی تین کپڑے نیک بندوں کے جو تین کپڑے ہیں وہ پہنو، پاجامہ نیک بندوں جیسا پہنو، اوپر کرتا نیک بندوں جیسا پہنو، سر پہ امامہ یا ٹوپی نیک بندوں کی طرح۔ یہ تقویٰ کا لباس ہے۔ کیوں؟ متقیوں کا لباس ہے، پرہیزگاروں کا لباس ہے۔ اور پرہیزگاروں کے لباس کو تقویٰ کا لباس کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اگر تم اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ پرہیزگاروں کا لباس پہنو۔ ذالک خیر، یہ جو تیسری قسم کا لباس ہے یہ بہترین لباس ہے۔ ہم خرما ہم ثواب، لباس کا لباس دیکھنے میں آدمی شاندار معلوم ہو رہا ہے اور طبیعت میں تقاضے، پرہیزگاری کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ میں اپنے یہاں طالب علموں کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ دیکھو، ایک مہینہ تم نیک صالحین کا لباس پہنو، پھر دوسرا مہینہ پتلون پہنو، اوپر بنیان پہنو، بال کھلے کندھا کرو، اور ایک مہینے تک اس لباس میں رہو۔ اگر پہلے لباس میں اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہوگے تو ہفتہ ہوتے ہوتے تمہارا جی چاہے گا نماز پڑھنے کو، تم مسجد میں جانے لگو گے۔ اور دوسرے لباس کی نحوست یہ ہے کہ اگر تم پکے نمازی ہوگے تو بھی ہفتہ ہوتے ہوتے خیر بخیر ہونے لگے گی، کبھی گئے نماز میں کبھی نہیں گئے۔ لباس کے اثرات پڑتے ہیں۔ وہ جو فرعون کا جو مقابلہ فرعون نے کروایا تھا موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ، تو سارے جادوگر مسلمان ہو گئے تھے اور میدان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ جادوگر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جیسا لباس پہن کر میدان میں اترے، تو اس لباس کی برکت سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دے دی۔ لباس کرنا پڑتا ہے۔ آپ سلوٹر ہاؤس دیکھنے جاؤ تو آپ اپنے ان کپڑوں میں نہیں جا سکتے، جو وہاں کے سلوٹر ہاؤس کے کپڑے ہیں وہ کپڑے آپ کو دیں گے، وہ پہن کر جانا ہے۔ ہم برطانیہ میں سلوٹر ہاؤس دیکھنے گئے تو انہیں کپڑے بھیجے کہ پہن کر آؤ، تو ہم نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے جانور بچکے میں، اگر نئے کپڑوں میں دیکھیں گے جانور بچکیں گے۔ تو اسی طریقے سے میدان میں تمام جادوگر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا لباس پہن کر آئے تھے، اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر کے خواہ کوش در عمل کوش، جو چاہو پہنو عمل کرو۔ ارے عمل کرنے کے لیے ہی صالحین کا لباس پہننا ضروری ہے۔ اگر تم نیک بندوں کا لباس نہیں پہنو گے تو جو عمل نہیں کر پاؤ گے۔ تو قرآن نے کہا کہ لباس کے تین درجے ہیں، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ایک لباس تو ہم نے تمہارے لیے وہ پیدا کیا ہے جو تمہارے ننگا پہ کو چھپاتا ہے،
वो रीशन, और दूसरा लिबास पर के जैसा है, परिंदों के लिए जैसे पर है ऐसा जीनत का लिबास है। वह लिबास तकवा खैर, ये जो परों वाला लिबास है, मुज़य्यन करता है, ये गैर मुत्तकियों का भी हो सकता है और मुत्तकियों का भी हो सकता है। मुत्तकियों का लिबास अगर तुम एक दूसरी किस्म का लिबास अगर मुत्तकियों का तुम पहनोगे तो तुम्हारे अंदर तकवा पैदा होगा। ज़ालिका खैर, ये 3 किस्म के लिबास में से ये लिबास तुम्हारे लिए बेहतर है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि कुर्ता पाजामा जोड़ा इसलिए कहते हैं कि कहलाता है कि वो एक मकसद की तकमील करते हैं, वो है मुज़य्यन होना। आदमी मुज़य्यन खूबसूरत लिबास है। एक और मिसाल ले लो, मैं मिसालें देने जाऊं तो ये सारी दुनिया की मिसालें होती रहेंगी। एक और मिसाल ले लो, कुरान करीम ने कहा कि आसमान और जमीन जोड़ा है। वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है और हमने आसमान को बहुत लंबा चौड़ा बनाया है। जिसको अल्लाह कहे लंबा चौड़ा बनाया है, वो कितना लंबा चौड़ा होगा उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, और जमीन को हमने बिछाया है, बस हमने बहुत शानदार बिछाया है जमीन को। ये आसमान जमीन को तज़किरा किया, फिर क्या कहा, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। इसी तरह जैसे आसमान जमीन जोड़ा है, इसी तरह से हमने हर चीज का जोड़ा बनाया है। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, हमने हर चीज से जोड़ा बनाया है। क्यों? लअल्लकुम तज़क्करून, शायद तुम्हें याद आए, शायद तुम्हें याद आए। तो क्या याद आए कि हमारी जो ये दुनिया है ये अकेली नहीं है, इसका एक जोड़ा है और 2 दुनिया मिलकर एक मकसद की तकमील करते हैं। ये बात तुम्हें याद आए। लोग इसी दुनिया को सब कुछ समझते हैं, बल्कि काफी तो ये समझता है वो मर गए और खत्म। भाई जब अल्लाह का कानून सारी कायनात में जोड़ा 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 जोड़ा, तो दुनिया अकेली कैसे हो सकती है? इस दुनिया के साथ दूसरी दुनिया है और 2 दुनिया मिलकर एक मकसद की तकमील करते हैं। वो एक मकसद क्या है? एक मकसद ये है, बो यहाँ काटो वहाँ, अमल करो यहाँ जज़ा पाओ वहाँ। अगर यही दुनिया होती, आगे कोई दुनिया जज़ा और बदले की दुनिया आखिरत न होती, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तके शेर भाजी तके शेर खाजा। बेचारा 1.5-2 घंटे से जख मार रहा है, तरावी पढ़ रहा है वो भी, और वो कलब में गाना बजाना कर रहा है वो भी, दोनों एक इकट्ठा हो गए। दुनिया में तो इकट्ठा हो गए, वो कलब में जो नाच कूद रहा है वो, और ये बेचारा तरावी में जो कुरान सुन रहा है वो दोनों इकट्ठा हो गए। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, खाजा के बाद में हलवा। ये मसल सुनी है तुमने? अंधेर नगरी चौपट राजा की मसल सुनी है? सुनी? एक नगरी थी, कंट्री थी, उसका राजा चौपट था, यानी अव्वल नंबर का बेवकूफ। चौपट के माने अव्वल नंबर का बेवकूफ राजा था। वो नगरी अंधेर नगरी थी, रोशनी थी नहीं, लाइट थी नहीं, यानी अकल की रोशनी वानी थी, सब बेवकूफों की बस्ती थी। और राजा भी वीर चौपट था, उसके पास भी अकल नहीं थी। तो एक गुरु और चेला उस नगरी में पहुंचे, तो वहां जाकर देखा कि सब्जी भी टके शेर है और हलवा भी टके शेर है। टका 2 पैसे को कहते थे, पहले एक आने के 4 पैसे होते थे, 2 पैसे 1 टका कहलाते थे। तो 2 पैसे की सब्जी भी शेर मिल रही है, हलवा भी शेर मिल रहा है। तो चेले ने कहा, गुरुजी ये कंट्री बहुत शानदार है, यहाँ हलवा बहुत सस्ता है, यहीं रहना चाहिए, खूब मजा आएगा, हलवा खाएंगे। गुरुजी ने कहा, बेटा यहाँ इंसाफ भी टके शेर होगा।
یا نہیں رہنا چاہیے؟ میں نے کہا گرو جی کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں رہو. تو گرو جی نے کہا بیٹا رہ گئے. اب وہ تو رہ گئے. اب گرو جی تو ریاضتیں کرتے تھے اور چیلا حلوا لا کر کے اڑاتا تھا. اب موٹا تازہ ہو گیا. گرو جی اس میں تھے ویسے کہ ویسے ہی رہے. پھر ایک واقعہ پیش آیا. چند چور چوری کرنے گئے ایک آدمی کے گھر میں نقب لگایا, دیوار پھاڑی. پھر ایک چور اندر گھسنے لگا تو دیوار اس کے اوپر بیٹھ گئی, مر گیا. صبح چوروں نے کورٹ میں دعویٰ کیا کہ فلاں آدمی نے اپنا گھر دیوار اتنی کمزور کیوں بنائی کہ ہمارا ایک چور دب کے مر گیا. جج نے کہا بالکل بلاؤ اس کو, مکان والے کو. مکان والے کو بلایا کہ بھائی تو نے دیوار کیوں اتنی کمزور بنائی کہ ایک چور دب کے مر گیا؟ تو اس نے کہا یور میجسٹی, میں نے کوئی دیوار بنائی, کڑیے نے بنائی ہے, معمار نے بنائی ہے. تو جج نے کہا ویری گڈ, بلاؤ کڑیے کو, جس نے دیوار کمزور بنائی کیوں بنائی. اب یہ مکان والے کی چھٹی ہو گئی. وہ ہے معمار. کڑیے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دیوار چنتا ہے, پتہ نہیں کیا بولتے ہو. اس سے پوچھا بھی تم نے دیوار کمزور کیوں بنائی؟ تو اس نے کہا یور میجسٹی, میں نے کہاں بنائی ہے کمزور, یہ تو گارا دینے والے نے پتلا گارا دیا اس لیے دیوار کمزور بنی. یہ تو قصور گارا دینے والے کا, میرا تھوڑا قصور ہے. ابھی سے نے کہا جی واہ خوب, جاؤ تمہاری چھٹی. اب گارا بنانے والے کو بلایا. کیوں بھائی تو نے گارا پتلا کیوں بنایا؟ اس نے کہا حضور میں جب مشق سے پانی ڈال رہا تھا کہ ایک آدمی لمبی ٹوپی پہنے ہوئے جا رہا تھا, عجیب شکل تھی اس کی, میں اسے دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا اور پانی زیادہ گر گیا. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے چلیے مجھے بلاؤ, لمبی ٹوپی والے کو بلاؤ. اب وہ ایک لمبی ٹوپی والا ترکی ٹوپی لمبی پہن کر کے گیا تھا, عجیب کی شکل تھی. جج نے اس سے کہا کہ تو ٹھیک اس وقت وہاں سے کیوں گزرا جب یہ گارے میں پانی ڈال رہا تھا؟ تیرے وہاں گزرنے کی وجہ سے اس کا گارا پتلا ہو گیا. اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں تھا. تو جج نے فیصلہ کر دیا کہ جو چور مرا ہے اس کے بدلے اس کو پھانسی دو. اب اس کو لے کر پولیس گئی پھانسی پر, تو پھانسی کا جو پھندا تھا وہ بڑا تھا اور یہ اس کے گردن پتلی تھی. وہ پھندا بیٹھتا ہی نہیں تھا. تو پولیس والوں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ حضور جج نے فیصلہ کیا ایک آدمی کی پھانسی کا, اور پھانسی کا پھندا بڑا ہے, جج کی گردن پتلی ہے, بیٹھتا نہیں. تو بادشاہ نے کہا جو موٹا تازہ ملے اسی کو دو بلا کر. اب جو شہر میں گئے تو وہ چیلا مل گیا جو حلوہ کھا کر موٹا تازہ ہو گیا. تو پولیس پکڑ کر کے لائی. اب اس نے گرو جی سے کہا گرو جی بچاؤ. اس نے کہا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہاں انصاف بھی تو کیسے ہوگا, تو نے مانا نہیں. اس نے کہا وہ تو نہیں مانا مگر اب بچاؤ. تو اس نے کہا تو جا, جب تجھے پھانسی دینے کا وقت آئے گا تو تیری آخری خواہش پولیس پوچھے گی. یہ دستور ہے, پوری دنیا کا دستور ہے کہ پھانسی دینے سے پہلے پولیس پوچھتی ہے کہ اپنی آخری خواہش بتاؤ. لطیفہ بیچ میں لطیفہ سنو. یہ کو پھانسی دینے کے لیے لے گئے. اس سے کہا بیٹی اپنی آخری خواہش بتا. اس نے کہا میری کوئی خواہش نہیں, بس مجھے پھانسی دے دو. تو پولیس نے کہا کہ نہیں بیٹی آخری خواہش تو بتانی پڑے گی, تو گورنمنٹ کا قانون ہے. تو اس نے کہا پھر اگر ایسا ہے تو مجھے جامن کھانے ہیں. جامن جانتے ہو کیا کہتے ہیں جامن کو؟ جامن وہ چیری جیسا آتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہوتا نہیں, جیسے چیری ہوتی ہے ایسا جامن آتا ہے, بڑا درخت ہوتا ہے. مجھے جامن کھانا ہے. تو پولیس نے کہا کہ آج کل جامن کا سیزن نہیں, 6 مہینے کے بعد اس کا سیزن آئے گا جامن کا. تو اس نے کہا پھر مجھے بھی کیا جلدی ہے. تو کہا کہ جا تجھے آخری خواہش پوچھیں گے, تو میں آ کر کے جو مجمع کھڑا ہوگا پھانسی دیکھنے کے لیے میں اس میں کھڑا ہوں گا, تو تو یہ کہنا پولیس والوں سے کہ وہ گرو جی ہیں, مجھے ان سے ایک بات کرنی ہے.
वो तुझे मेरे पास आने देंगे, तो मेरे पास आइए। फैले गए, मजमा इकट्ठा हुआ, पूछा उससे, उसने कहा गुरुजी से मुझे एक बात करनी है। पुलिस ने जाओ कराओ। अब वहां गया तो पहले से आपस में तय था, काना खुशी की, दोनों ने कुछ किया, और फिर दोनों बड़े लड़ रहे हैं। वो कहता मैं फांसी खाऊंगा, वो गुरु कहता मैं खाऊंगा, ये कहता मैं खाऊंगा, वो कहता मैं खाऊंगा। तो पुलिस ने कहा ये भी अजीब पागल है, दोनों फांसी खाने के लिए लड़ रहे हैं। बादशाह को इत्तला की हुजूर दो आदमी लड़ रहे हैं, ये हर एक कहता मैं फांसी खाऊंगा। तो बादशाह ने कहा पूछो उनसे क्यों लड़ रहे हैं। पूछा तो गुरुजी ने कहा कि ये घड़ी अमर है, इस घड़ी में जो मरेगा वो जिंदे जाविद हो जाएगा। बादशाह को बतलाया ये अमर घड़ी है। तो बादशाह ने कहा कि हम ही को दे दो फांसी, हम ही अमर हो जाए। तो मेरे भाइयों, अगर इस दुनिया के साथ आखिरत नहीं है तो फिर ये दुनिया तो अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया। जो इबादतों में अल्लाह को पहचानता है, अल्लाह की रजा के लिए इबादतों में रात दिन कोशिश करता है, उसको भी कोई अच्छा खिला नहीं मिल रहा, और वो जो क्लब में नाचता है उसको भी कोई थप्पड़ नहीं पड़ रहा। लिहाजा कोई दुनिया चाहिए जिस दुनिया के अंदर दाने और भूस में इम्तियाज हो। दाना और भूस जानो, खेत में गेहूं बोए, जब गेहूं उगता है, बढ़ता है, बालियां आती हैं, पकता है, तो तुम्हें गेहूं का दाना कहीं नजर आता है? कहीं भी नजर नहीं आता। घास निकल रही है, उसमें पत्ते हैं, लकड़ी है, ऊपर बाली है, वो बालियां के अंदर भी भूस है, और भूस के अंदर छुपा हुआ दाना है। लेकिन एक वक्त आता है कि खलियान कटता है, और एक वक्त आता है कि खेत कटता है, फिर सूखता है, फिर खलियान में आता है, फिर पहले उस पर बैल घूमते थे, अब तो थ्रेसर है, पहले बैल घूमते थे, घासते थे, फिर जब भूसा हो जाता था तो हवा में बरसाते थे, जब बरसाते थे तो दाना यहाँ गिरता था और भूस गया। देखो अब दाना और भूस अलग हुआ। जब तक खेत में खड़ा था, गेहूं खेत में खड़ा था, दाना और भूस अलग नहीं था। अब जो दाना गिरा वो यहाँ से उठकर घर में कोठी में जाता है, और जो भूस गया वो भूस यहाँ से उठकर घर के बाहर में जाता है, याद में। ये जो कोठी में दाना गया उसे इंसान खाते हैं, और वो जो याद में भूसा गया उसको जानवर खाते हैं। इसी तरीके से ये दुनिया है, इस दुनिया में खेत खड़े हैं, गेहूं के खेत खड़े हैं, इसमें तुम्हें कहीं दाना तो नजर ही नहीं आएगा। घूमो सड़क पर सब बुरे ही बुरे लोग नजर आएंगे, तुम्हें नेक बंदे बड़ी मुश्किल से कोई नजर आएगा। लेकिन एक वक्त आ रहा है, इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया आ रही है, जब ये खेत कटेगा, फिर वहां बरसेगा, फिर वहां दाना और भूस अलग होगा, फिर दाना जाएगा जन्नत में और भूसा जाएगा जहन्नम में। तो कुरान करीम ने कहा कि इस जिंदगी के बाद दूसरी दुनिया है। अगर दूसरी दुनिया नहीं है तो इस दुनिया का कोई हासिल नहीं है, इस दुनिया का कोई मकसद पूरा नहीं होता है। अगर इसी दुनिया में जजा और सजा दोनों है तो गैब नहीं रहा, ओपन हो गया। ओपन हो गया तो हर आदमी मान लाएगा। नमाज पढ़कर निकला, वहाँ सब बाहर निकला और धड़ देकर हाथ में 2 लड्डू आ गए। कैसीनो में से निकला और उस दरवाजे पर गया, किसी झपट मारा, तो फिर कहा जाएगा कोई कैसीनो में? और हर आदमी नमाज पढ़ने आएगा तो 2 लड्डू मिलेंगे, तो गैब कहाँ रहा? इसे जजा इसी दुनिया में जजा मिली, अच्छे काम की जजा मिली, बुरे काम की सजा मिली इसी दुनिया में, तो और खत्म हो गया, तो इम्तिहान क्या रहा? इसलिए अल्लाह ने ये दुनिया अमल के लिए बनाई है और अगली दुनिया जजा और सजा के लिए बनाई है। यही मजमून है कि अल्लाह तो पाक है, उनका तो कोई जोड़ा नहीं है। बाकी उन्होंने हर चीज का जोड़ा बनाया है, इंसानों के भी जोड़े बनाए हैं। नरमादा जोड़ा क्यों है? एक मकसद की तकमील करते हैं। वो मकसद क्या है? नस्ल आगे बढ़ाना। नर और मादा दोनों होंगे जभी तो नस्ल आगे बढ़ेगी। भैंस और भैंसा होंगे जभी तो नस्ल आगे बढ़ेगी।
बकरी और बकरा होंगे जभी तो नस्ल आगे बढ़ेगी। तो नस्ल आगे बढ़ती है, एक मकसद है, ये नर मादा से मिलकर पूरा होता है। तो इंसानों के भी जोड़े बनाए हैं ताकि नस्ल आगे बढ़े, जानवरों के भी अल्लाह ने जोड़े बनाए हैं ताकि नस्ल आगे बढ़े। वहीमा तुम देखो अर्ब, जमीन जो चीजें उगाती है उसमें भी जोड़े हैं। जोड़े जैसे देखो हमारी ग़िज़ा में दो चीजें हैं, एक रोटी है और एक सालन है। सिर्फ रोटी होती तो क्या मजा आता खाने में, और सिर्फ सालन होता तो तब तक पीते। तो अल्लाह ने तिलहन पैदा किया, तिलहन, वो तमाम चीजें जिनसे से तेल निकलता है, वो खुद खाई नहीं जाती, उसमें तेल निकालो और खाओ। जैतून है, सरसों है, तिल है, ये वो चीजें आप तो कॉर्न में से भी निकालते हैं तेल। ये उर्दू में ऐसी तमाम चीजें तिलहन कहलाती है। सरसों, राय, तिल, जैतून, कॉर्न, ये तिलहन पैदा किए। और दूसरी चीजें वो हैं जो ग़िज़ा बनती हैं, उनकी रोटी पकाओ, इस तिलहन के साथ लगा करके खाओ, या इसका सालन बनाओ और खाओ, अब बड़े मजे से खाना उतरेगा। अभी एक लुकमा रख कर फारिग भी नहीं, अगला लुकमा तैयार भी नहीं किया और वो मुंह में से लुकमा चला गया पेट में, और बगैर सालन के खाओ, उतरता ही नहीं। तो जो चीजें अल्लाह ताला ने जमीन में से पैदा की हैं उनमें भी इसी तरह से एक जोड़ा है फल और ग़िज़ा। अगर फल ही फल होते तो कैसे पेट भरता है, और ग़िज़ा ही ग़िज़ा होती और उसके साथ फल न होते तो सारा पेट ग़िज़ा ही से भरना पड़ता है। तो अल्लाह ने कहा खाओ, तो थोड़ा पेट खाली है और खाना छोड़ दो और फल खाओ। पेट भर गया कि भर गया, बोझल हुआ कि नहीं हुआ। अगर सारा पेट ग़िज़ा से भरोगे तो पेट बोझल हो जाएगा, और सारा पेट फलों से भरोगे पेट भरेगा ही नहीं। तो अल्लाह ने मुख्तलिफ तरह से दो चीजें बनाई हैं जमीन से उगने वाली कि जिनसे एक मकसद की तकमील होती है। ऐसे ही जो कायनात हम नहीं जानते हैं, जैसे आखिरत हम नहीं जानते, हमारे आंखों ने देखा नहीं है, उसका भी जोड़ा है। उसका जोड़ा कौन सा है? ये दुनिया, इस दुनिया का वो जोड़ा है। ये मजमून सूरह यासीन शरीफ में बहुत दूर से लेकर बहुत दूर तक आखिरत तक दलाइल कायम किए गए हैं। उन दलाइल में से एक दलील ये है, इस दलील का नाम है कानून इज़्दिवाज, जोड़े का कानून। अल्लाह का कानून है, अल्लाह की खलकत में जोड़ा हर मखलूक जोड़ा बनाई है। बस इस दुनिया का भी जोड़ा आगे आ रहा है। बस इस दुनिया में सिला और बदले की उम्मीद मत बांधो, और सजा गुनाह की न मिले तो बेखौफ मत हो जाओ। इस दुनिया में अगर नेक अमल का सिला और बदला न मिले तो उम्मीद मत बांधो, और गुनाह की सजा न मिले तो बेखौफ मत हो जाओ। जज़ाओ सजा के लिए अगली दुनिया आ रही है। ये मजमून इस जगह बयान किया गया है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व सल्लम। या इलाहल आलमीन, हमारी नेकियों को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी हसनात में इजाफा फरमा। या अल्लाह हमारी नेकियों का बेहतरीन सिला आखिरत में अता फरमा। या अल्लाह हमें इस दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और जहन्नम के अजाब से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस रमजान को वसूल करने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ज्यादा से ज्यादा इबादत की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा, और तमाम मुसलमान मर्दों की और मुसलमान औरतों की मग़फ़िरत फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।